अच्छा यार, आज का प्लान ये है कि we'll be reviewing what we did last time, and once we are done with reviewing what we discussed last time, we are going to be talking about these 10 principles of economics. And these 10 principles of economics are basically chapter one of the book. And once we have gone through these 10 principles of economics, I will be tasking you to actually open the book up, and against each of these 10 principles, you will be required to actually write down three sentences on each of these 10 principles. So basically, 30 lines um, as an assignment for this class would be required today. So since it is 8:45, I guess it is time that we start off with today's session. We'll start off by once again reviewing what we covered last time. And once we are done with that, we will be shifting to the 10 principles. I hope everybody can hear my voice, and I will be sharing my screen, so hopefully people can actually see the screen as well. Uh, and I have opened up the slides. Please confirm that you can actually see them. यस सर, आवाज आ रही है। Zabardast. यस सर। Acha, so if you remember last time जब हम class में थे, तो we were talking about the fact that this model of demand and supply was derived from this guy called Adam Smith. और Adam Smith ने कहा था कि यार there is the market basically is a place where the buyer and seller meets. और जो बायर होता है वो कुछ चीज की डिमांड करता है, सेलर कुछ ले आता है, बना के लेकर आया होता है, or in the market they basically agree on a certain price, and based on the price and how much is and how much is being supplied, एक equilibrium establish होता है जहाँ पे market clear हो जाती है. And if you remember, equilibrium point is where price gets decided, and what it gets how much gets produced and supplied gets decided as well. ये हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर व्हेन वी वर डिस्कसिंग हाउ द मार्केट वर्क्स हमने ये बातें की थी. उसके बाद फिर आप लोगों ने यू अटेम्प्टेड टू डू द चैप्टर एंड क्वेश्चंस फॉर द डिमांड एंड सप्लाई एज वेल, जिसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात भी आई थी. तो इट इज़ ओके that you are facing trouble in understanding this stuff. Last time we said that this was a sort of a free market, no intervention by the government model. But sometimes what happens is that the government can intervene into the market so that it can either enhance the efficiency of the market or create equity in the market. तो एफिशिएंसी का मतलब है कि सबसे अच्छे तरीके आइडियल तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बेस्ट प्राइस के ऊपर, और इक्विटी का मतलब ये इक्वालिटी हो इन 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 सम रिगार्ड, कि फॉर एग्जांपल इफ मार्केट से इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और एंड द प्राइसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर, मे बी द गवर्नमेंट कैन इंटरव्यू. तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली we talked about something called price ceilings. We talked about something called price floors, और फिर we talked about something called taxation. हमने कहा था कि ये दो तीन तरीके हैं थ्रू विच द गवर्नमेंट हुकूमत जो है मार्केट के अंदर इंटरवीन कर सकती है, और we wanted to kind of figure out what happens when one of these interventions happens. So आज की क्लास में what we'll be doing is we'll just be reviewing what we covered last time,
एंड कोई भी अगर सवाल जवाब हुआ लास्ट टाइम की लेक्चर के बारे में तो वील ट्राई टू गेट टू दोस in today's session. And once we're done with chapter number 6, we'll move on to chapter number 1. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, तो स्लाइडें ये वही वाली हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, तो आई विल नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट, बट फिर भी आई जस्ट since I want to kind of recap everything with you guys, because it's an important part of what is going to be needed by you guys. So let's just review it. हमने कहा था जी market was supposed to be unregulated, free, and market forces would decide कि कीमतें क्या होंगी और कितना प्रोड्यूस होगा. And by not intervening, the market could be efficient. बट इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो सेटिस्फाइड ना हो, बिकॉज हो सकता है जो कीमत डिसाइड हो रही हो मार्केट के अंदर वो जो है वो दे कांट अफोर्ड. एंड जो ऑन द लूजिंग एंड होते हैं दे माइट आस्क द गवर्नमेंट कि जी आप इस तरह करें कि आप जरा मार्केट में इंटरवीन करके या तो फ्लोर लगा लें या सीलिंग लगा दें या टैक्स लगा दें. एंड यहाँ पे आइदर कंट्रोल द प्राइसेस. Price control is where we said कि जी they will either try to control the prices through ceilings or floors, or they can decide to tax the goods and services. What we did not cover last time was the fact that sometimes hukumat rather than taxing can actually give uh, subsidies as well. So rather than taking money from the firms and the households, the government can actually say कि यार ये वाला जो सेक्टर है ना ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, तो हम इस तरह करेंगे कि अगर ये ट्रैक्टर आप लाख रुपए का बना रहे हैं ना तो लाख रुपए के अगेंस्ट हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे ताकि आप इसको सस्ता करके बेच सकें. एंड व्हेन सम ऑफ द कॉस्ट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर जब सप्लाई बढ़ेगी so what is eventually happening in the market is more is being produced. So what I'm trying to say is sometimes the government wants to incentivize a certain sector. अगर उस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है तो फिर वो सब्सिडी देके प्रोडक्शन बढ़वा सकते हैं उस मार्केट के अंदर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इज कि जब आप टैक्स लगाते हैं ना तो जब भी आप टैक्स लगता है तो जो क्यूब प्रोड्यूस हो रहा होता है वो कम हो जाता है. When we get to that, we'll discuss that again. अच्छा, तो प्राइस कंट्रोल्स. प्राइस कंट्रोल्स के अंदर हमने लास्ट टाइम कहा था कि देयर कैन बी एन अपर लिमिट कि कीमतें इससे ज्यादा ना हो सकें, और देयर कैन बी अ लोअर लिमिट कि यार इससे कम ना हो सके. एंड बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड प्राइस कंट्रोल. जब आप कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि जी इस कीमत से ज्यादा कीमत ना हो सके, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? Price ceiling. Price यार ceiling. और जब आप कहते हैं कि यार Price इस control. प्राइस कंट्रोल हो रहा है लेकिन सीलिंग है या फ्लोर है? Price ceiling. Ceiling. और फ्लोर का क्या मतलब है? कीमतें इससे कम ना सर हो. एक मिनिमम प्राइस एक सेट हो जाए. और इससे कम नहीं जा सकते आप. जो तनख्वाह की हमने बात की थी कि मिनिमम तनख्वाहें जो है ना इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए. So these are two kinds of controls that the government can put on prices by either implementing what is called ceiling or floor. और फिर हमने कहा था कि जी देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइंडिंग सीलिंग एंड अ नॉन बाइंडिंग सीलिंग. अगर ये ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर पता लग रहा है कि जी डिमांड और सप्लाई जो मार्केट के एरिया की जो भी चीज़ है ना, आइसक्रीम है, आइसक्रीम की कीमत $3 होनी चाहिए. हुकूमत ने कहा कि हम $4 की सीलिंग लगा रहे हैं. इसका क्या मतलब है $4 की सीलिंग का? सर $4 से ऊपर नहीं जा सकती प्राइस. फैंटास्टिक. अगर 4 से ऊपर नहीं और जा सर सकती, इससे सरप्लस क्रिएट हो जाएगा. नहीं, अगर 4 से ऊपर नहीं जा सकती और मार्केट के एरिया 3 होने चाहिए, तो डज
placing the ceiling have any impact on the market? No. यस No, सर, sir. सरप्लस क्रिएट हो जाएगा ना। देखो, कीमत मार्केट के लिए $3 होनी है, हुकूमत के लिए 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक तो है। मार्केट हाँ। के अंदर 3 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइंडिंग नहीं है ये कंस्ट्रेंट, तो इट इज नॉट अफेक्टिंग द मार्केट। ये लिखा हुआ है दिस इज नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब है इसका कोई इफेक्ट आ नहीं रहा मार्केट के ऊपर, बिकॉज मार्केट के लिए ₹3 का है, आप कह रहे हैं 4 से ऊपर ना हो, तो ठीक है यार, 3 इज फाइन, 3 4 से ऊपर नहीं है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर। अलबत्ता जो सेकंड सिनेरियो है, दिस इज वेयर शॉर्टेज क्रिएट होगा। मार्केट के लिए ₹3 होना चाहिए कीमत आइसक्रीम की, हुकूमत ने कहा ₹2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जब आप हुकूमत ने कहा जी ₹2 से ऊपर नहीं हो रहा और मार्केट के लिए ₹3 का होना है, तो देन बेस्ड ऑन दिस प्राइस सप्लायर कहता है कि यार ₹2 पे तो मैं खाली 75 प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकता हूँ, 100 नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सप्लाई 100 टू यू एट ₹2 per dollar, and therefore 75 ice creams get supplied। जब आइसक्रीम सस्ती होगी 3 से 2 पे, तो मोर पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय इट। 125 ने कहा जी वी आर डिमांडिंग द आइसक्रीम बिकॉज नाउ वी हैव द मनी टू एक्चुअली बैक अप आवर विश वांट। तो 125 मांग रहे हैं, 75 सप्लाई हो रही है, तो दैट इज वेयर अ शॉर्टेज गेट्स क्रिएटेड। तो जब भी हुकूमत प्राइस सीलिंग लगाती है जो बाइंडिंग होती है, जिससे मार्केट में इम्पैक्ट आता है, तो उससे होता ये है कि शॉर्टेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि अच्छी बात है कि नाउ मोर पीपल कैन अफोर्ड इट, बट कन्वर्सली द नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वजह से शॉर्टेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है मार्केट के अंदर। इसे कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती, ये दिस इज अ न्यू टर्म, वी नॉट डिस्कस दिस लास्ट टाइम। एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती जब भी आप एलोकेशन करते हुए देयर इज नो नॉट एफिशिएंट, मार्केट में एफिशिएंसी नहीं हो रही, बिकॉज एलोकेटिव एफिशिएंसी वाज कि यार $3 की कीमत होती तो 100 रिक्वायर्ड होते, 100 बन जाते और बड़ी एफिशिएंटली मार्केट ऑपरेट कर लेती। लेकिन जब आप शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एलोकेशन के अंदर मसला आ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, देयर इज अ शॉर्टेज, एंड व्हेन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस वी से कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आ गई मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ अ प्राइस सीलिंग। डज दैट मेक सेंस? So once again, allocative efficiency is when आपकी डिमांड और सप्लाई के दरमियान में गैप आ जाए। Is that okay? Yes, sir. sir. सर वो इनएफिशिएंसी नहीं थी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो डिमांड और सप्लाई में, मतलब जिससे शॉर्टेज क्रिएट हो। मैं यही कह रहा हूँ कि एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं हो रही इसके अंदर, तो इनएफिशिएंसी इज व्हाट्स हाँ हैपनिंग। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वाज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में हमने कहा था बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस कीमत से ऊपर ना जाए, ये हमने बात कर ली है, इट क्रिएट शॉर्टेजेस। ये जो आप लोगों ने अभी मुझे ग्राफ में बताया कि जी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, एंड जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो ऑल्दो कई लोगों के लिए चीज सस्ती हो जाती है, बट व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज कि ये जो गुड्स की एक मार्केट शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केट। एंड लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि ब्लैक मार्केट्स के मसाइल ये होते हैं कि जब किसी भी मुल्क की जो है ना के अंदर ब्लैक मार्केट्स जनरेट होना शुरू हो जाती है ना, तो उनका हुकूमत को आइडिया नहीं होता कि यार ब्लैक मार्केट में क्या हो रहा है, और वो अपनी कैलकुलेशंस के अंदर ना इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, और इवेंचुअली हुकूमतों को नुकसान होना शुरू। ये जो लास्ट में टर्की की बात की हुई है ना कि यार हुकूमत ने कहा कि यार हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, डॉलर को कंट्रोल करने की वजह से जब आपने एक सीलिंग लगा दी कि यार डॉलर का रेट इससे ऊपर नहीं जाएगा,
So there was shortage of dollars in the country, and when there was shortage of dollars in the country, जिन लोगों ने travel करना था, फिर वो they were willing to pay a higher price for it. तो एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी जहाँ पे लोगों ने कहा कि यार अगर आपको डॉलर चाहिए तो मेरे पास आके ले लो, and I'll actually give you the dollars, but you'll have to pay me a premium against it. So this was price ceilings. गैसोलीन की एग्जांपल भी देख लें यहाँ पे. We discussed this example in which we said कि जी हुकूमत ने कहा कि एक सीलिंग लगा रहे हैं. Initially it was not binding, but जब तेल की कीमत बढ़ गई in the second graph, so initially it was not binding because कीमत इतनी थी, हुकूमत की थी इस कीमत से ऊपर नहीं जाना, इस कीमत से ऊपर नहीं जाना. But later on when supply decreased because of certain reasons, whatever reasons, what happened was that this constraint became binding, and binding की वजह से there was a gap between supply and demand, and that resulted in shortages of gasoline in the country. इसके अलावा we talked about how housing sector के अंदर you can have ceilings कि यार रेंट जो है इस कीमत से ज्यादा ना हो. And what is important to remember is that in all of these scenarios, the government is trying to help out. वो इंटरवीन कर रही है ताकि लोग जो है ना exorbitantly high rents ना चार्ज करें लोगों से. तो वो कहते हैं जी यार इतना रेंट है, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना. They are able to reduce prices from this price level to a lower level, which is fine. But हमने कहा था fine by putting a ceiling over here. The government can actually control prices, control rents in this case. However, उसकी वजह से अपार्टमेंट्स की शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी, एंड इन द लॉन्ग रन जब कीमतें कम होंगी तो न्यू कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, एंड बिकॉज लोगों को इस तरह के बिजनेस के अंदर मुनाफा नजर नहीं आ रहा होगा, बिकॉज दे विल सी कि जी हुकूमत तो किरायों के ऊपर एक सीलिंग लगा देती है, तो दे विल इवेंचुअली नॉट सप्लाई मेक न्यू अपार्टमेंट्स टू रेंट आउट, एंड उससे होगा एक इन द लॉन्ग रन व्हेन द डिमांड कर्व्स एंड सप्लाई कर्व्स बिकम इलास्टिक, तो सप्लाई कम हो रही होगी, डिमांड ज्यादा हो रही होगी, तो ये शॉर्टेज जो है ना वर्सन हो जाएगा इन द लॉन्ग रन. एंड ये कौन सी किस तरह की एलोकेटिव एफिशिएंसी हो रही है? इज इट एलोकेटिवली एफिशिएंट और इनएफिशिएंट इज माय क्वेश्चन. सर इनएफिशिएंट. या सो इस केस में भी जो है ना डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप आ रहा है, शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, तो ये इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू एलोकेशन. So these are examples of allocative inefficiencies being created in the market जब भी हुकूमत intervene करती है मार्केट के अंदर. अच्छा, now floors was basically when आप कहते हैं कि यार इस कीमत से कम कीमत पे जो है ना चीजें नहीं बिक सकती. So when you set a minimum price, यार ये minimum price है and buyers must buy the good at this minimum price, not less than that. हाँ जी, so this is the market for ice creams again. इसमें आपने कहा जी आइसक्रीम की कीमत $2 से कम नहीं होनी चाहिए, $2 से कम नहीं होनी चाहिए. That's what you're saying when you're putting up a floor over here. मार्केट कह रही है कि $3 होनी चाहिए, आप कह रहे हैं $2 से कम नहीं होनी चाहिए, तो is the constraint binding or not? आप कह रहे हैं हुकूमत कह रही है 2 से कम ना हो, मार्केट कह रही है $3 है. Is that okay? Is that okay or does it impact the market? क्या ख्याल है? Sir, it will impact the market. सर इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. Impact बिल्कुल नहीं. I agree with the second person over here. Notice that $3 this is a floor now. This is a price का floor. इसका मतलब है हुकूमत चाहती है कि इससे कीमत नीचे ना जाए. Whoever is going to buy this thing
should buy it at a minimum price of $2. अभी प्राइस $3 है, which is more than the floor, so nothing happens. The constraint is actually not binding. सेकंड सिनेरियो देखें, सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है? हुकूमत कहती है कि $4 से कम नहीं होनी चाहिए कीमत आइसक्रीम की। मार्केट के लिए कीमत कितनी है? मार्केट के लिए कीमत $3 है। हुकूमत ने क्या कहा था? $4 से कम ना हो। Prices of ice cream should not be less than $4, but market says it is $3. This is the case where the constraint is now binding. अब जो हुकूमत ने लॉ डाला है ना, इसके ऊपर, इनके ऊपर, लोगों के ऊपर, मार्केट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो बाइंडिंग है। आइसक्रीम की कीमत $3 नहीं हो सकती, $3 नहीं हो सकती। It has to be minimum $4 as per the government instruction when they put up a price floor in the market. मार्केट के लिए $3 होनी चाहिए, हुकूमत के लिए 4 से कम नहीं होनी चाहिए। That is why the constraint is binding in this case. And when it's binding, what's happening is कि $4 पे बायर कह रहा है यार ये तो महंगी आइसक्रीम है, मैं तो खाली 80 अफोर्ड कर सकता हूँ, because demand was willingness and ability to buy stuff. So buyers say कि we can only afford, we are only willing and able to buy 80 ice creams. सप्लायर को नजर आ रहा है कि $3 की जगह $3 की जगह $4 मिल रहे हैं, and the supply is like at this price level I am willing and able to supply a higher amount, 120 ice creams. तो अब हो रहा है कि 120 आइसक्रीम सप्लाई हो रही हैं और 80 डिमांड हो रही हैं, so there is a surplus of 40 ice creams that are not being sold. अब हो क्या रहा है? फाइन, आपने एक फ्लोर लगा के कह दिया कि यार इससे कम नहीं होना चाहिए कीमत, वो पॉलिसी इफेक्टिव होगी इन 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 मेकिंग श्योर दैट द प्राइसेस आर नॉट $3, देयर at least $4 or more than $4. But what happens in such scenarios is that suppliers का भी फायदा होता है कि $4 का बिक रहा है, but what is happening is that the supplier faces difficulty in now selling the surplus. ये जो 40 additional आ गए ना, the supplier will struggle to actually sell these ice creams. And however, by putting up a floor, the government is able to actually support the buyer, the seller. बट हमने कहा था कि जी जब भी फ्लोर डालते हैं तो उससे होता है ये कि सरप्लसेस क्रिएट हो जाते हैं, माल ऐसा होता है जो बिक नहीं रहा होता, बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड इज बिकम्स ग्रेटर देन व्हाट इज बीइंग डिमांडेड। और लास्ट टाइम हमने कहा था कि जी जब वीट होती है तो हुकूमत पाकिस्तान एक सेट कर देती है कि यार ये जो आटा है ना वो इतने का बिकेगा, दाने जो है आटे, and by doing so they can create a minimum threshold at which wheat gets sold. However, it might lead to बहुत से लोगों की जो wheat है वो बिक ही ना रही हो। If you remember last year, this year, जब ये जब wheat का हुआ था तो there was a lot of problems with wheat getting sold. जो प्राइस सेट की गई थी ना हुकूमत की तरफ से, it was a minimum price that they set up, and because of that reason they had set up a floor. उसकी वजह से हो रहा था कि लोगों को जो दाने थे फॉर वीट वो बिक नहीं रहे थे, उन्होंने स्टॉक किए हुए थे। मिनिमम वेज लॉस के अंदर द सेम थिंग हैपेंस कि जब आप मिनिमम वेज इंप्लीमेंट करते हैं, अगर ग्राफ ए को देखें, मार्केट की कहती है वेज इतनी होनी चाहिए, हुकूमत कहती है नहीं जी हमने फैसला कर लिया है कि आम शहरी को 34,000 फॉर वर्किंग 8 hours a day देंगे। नाउ दिस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम वेज,
अगर इक्विलिब्रियम वेज इतनी होनी चाहिए थी, तनख्वाह इतनी होनी चाहिए 20,000, आप कहते नहीं 20,000 नहीं 34,000 देनी है टू अ फुल टाइम वर्कर हु वर्क्स फॉर 8 hours a day. Since firms have limited resources as well, at a higher wage, जब हुकूमत ने कह दिया तो they are bound to do it. And since they are bound to do it and this constraint is binding, होगा ये कि फर्म्स कहेंगे कि यार हम ठीक है, हम 20,000 की जगह 34,000 देने के लिए तैयार हैं, बट सिंस वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज वी विल ओनली बी डिमांडिंग अ फ्यूअर अमाउंट ऑफ पीपल and at a higher wage more people will be willing and able to work for firms, so there is going to be a surplus of labor in the market. And surplus of labor का मतलब ये है कि लोगों को नौकरियां, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नौकरी ढूंढ रहे होंगे, उनको नौकरी मिल नहीं रही, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। अच्छा जी, तो ये तो हो गया प्राइस के बारे में थोड़ी सी बातें। Remember that we've discussed all of this in the last class, so that's why I'm not taking too much time on this. The second kind of intervention that the government can do is about taxes. Or if you remember last time we talked about how there are two kinds of taxes. There is a direct tax and there is an indirect tax. और हमने कहा था direct taxes are good taxes, indirect taxes are bad taxes. बिकॉज होता ये है कि अमीर बंदा भी दूध की बोतल पे उतना टैक्स देता है जितना गरीब बंदा देता है, सो दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो दैट्स व्हाई वी बेसिकली से दैट indirect taxes are bad taxes. Indirect taxes do not distinguish between the rich and the poor. That is why they are called regressive taxes, whereas direct taxes are called progressive taxes. And in the case of progressive taxation, what is happening is that the higher your salary, the more tax you're supposed to pay. Acha, so when it comes to what happens when the government taxes people, what is important is to understand is कि जब भी tax लगता है ना, तो eventually product की कीमत बढ़ती है. तो whenever you tax a good, मैं मार्कर बेच रहा था 10 रुपए का, हुकूमत ने कहा 5 रुपए, 5 रुपए नहीं देने, 2 रुपए तुमने टैक्स देना है इसके ऊपर पर यूनिट. So I was selling my marker at 10 rupees. Government said you are supposed to now give us additional 2 rupees worth of tax. सही है? अब what the firm now needs to decide is कि यार ये 2 रुपए additional tax आया, क्या मैं सारा का सारा ट्रांसफर कर दूं बायर के पास, या कुछ मैं दे दूं और कुछ बायर दे दे, या सारा का सारा मैं दे दूं और कंज्यूमर पे ना डाला जाए. So let me just discuss this in more detail. So I was, let's say, selling a marker at 10 rupees. हुकूमत ने कहा जी आपने मुझे 3 रुपए एडिशनल टैक्स देना है. So eventually now my decision that I have to kind of worry about and think about is कि यार ये 3 रुपए एडिशनल टैक्स मैं लगाऊंगा, मैंने देना होगा हुकूमत को. It can either be, it has to be divided between the buyer and seller. कि इस 3 रुपए में से कितना पोर्शन कंज्यूमर पे जाएगा और कितना पोर्शन प्रोड्यूसर पे जाएगा. राइट? तो फर्म्स काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट कि यार इस तरह करते हैं कि 3 रुपए का जो है ना 90% जो है ना बायर पे डाल देते हैं और 10% हम डाल लेते हैं, हम नुकसान बेर कर लेते हैं. और द प्रोड्यूसर कैन से कि यार इस तरह करते हैं कि सिंस ये जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो ऐसी है कि जो बायर ने खरीदनी है, तो फिर तो ये 90% टैक्स उसके ऊपर डाल सकता हूँ. बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी अगर कीमत बढ़ी तो बायर कहेगा यार मैंने तो नहीं देना, द प्राइस इज टू मच फॉर मी नाउ, आई विल नॉट बी बाइंग योर स्टफ. अगर आपको डर इस बात का है ना कि यार टैक्स लगा दिया बायर के ऊपर ज्यादा,
तो वो भाग जाएगा और चीजें नहीं खरीदेगा। तो देन द सेलर वुड प्रॉब्ली बी थिंकिंग कि यार इस तरह करते हैं कि 40% जो है ना वो बायर पे डालता हूँ, 60% जो है ना मैं आई टेक द हिट फॉर इट। हाउ this ₹3 of additional tax gets distributed over the buyer and seller 90-10 या 40-60 या 50-50 is called कि टैक्स का बर्डन किसने बेयर करना, किसने ज्यादा करना है, किसने कम करना। तो अगर आप स्लाइड पे देखें तो जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है वो ये इनडायरेक्ट वाला टैक्स होता है, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जो जरूरी बात है ना, जब भी मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि जब आप टैक्स लगाते हैं ना, उससे होता है कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होती है ना वो कम हो जाती है। whenever you tax things Q falls and that is why यहाँ पे लिखा ये है कि taxes discourage market activity. When a good is taxed the quantity sold becomes smaller, कम चीजें बन के बिकती हैं। और फिर जब ये टैक्स लगता है तो बायर और सेलर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं कि कितना बायर ने देना है, कितना सेलर ने देना है। एंड दिस इज कॉल्ड टैक्स इंसिडेंस। कि टैक्स लगेगा तो टैक्स किसने बेयर करना है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस। इवेंचुअली जब भी टैक्स लगता है ना तो होता ये है कि बायर ने भी ज्यादा देना होता है और सेलर, बायर ने ज्यादा देना होता है पैसे और सेलर ने को कम पैसे मिलते हैं। तो जब भी टैक्स लगता है तो बायर ने पहले 10 रुपए कीमत थी ना, तो 10 रुपए से ज्यादा कीमत देनी है, सेलर ने 10 रुपए से कम रिसीव करनी। तो इफ आई वॉज मेकिंग अ मार्कर फॉर एंड कीमत 10 रुपए थी, जब टैक्स लगेगा जितना भी लगेगा तो बायर ने 10 रुपीज के ऊपर कुछ टैक्स करके देने, 1 रुपी देने, और सेलर ने इससे 10 रुपए से कम करके कुछ देने टैक्स। When we look at the graph, we'll understand this in more detail. हाँ जी, क्या होगा जी? वी आर पुटिंग अप अ टैक्स ऑन बायर्स, व्हाट हैपेंस, क्या ख्याल है? आप 50 सेंट का टैक्स लगा रहे हैं बायर्स के ऊपर, क्या होगा जी? प्राइस ऊपर चली जाएगी। प्राइस बढ़ेगी इवेंचुअली, लेकिन सिंस ये भी बायर्स पे लग रहा है तो बायर्स की कुव्वत खरीद कम होगी या सप्लायर की? सर बायर्स की। अच्छा, अब इसका तरीका ये होता है कि यार आप कहते हैं डिमांड कम होगी बिकॉज अब कीमत बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कीमत बढ़ेगी, तो व्हाट यू बेसिकली इम्प्लाइंग इज के डिमांड कम होगी। अब डिमांड कितनी कम होगी इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये डिमांड की कर्व है ना, ये इट हैज टू मूव बैकवर्ड्स। तो स्टेप नंबर 1 बेसिकली इज कि आपने यू हैव टू मूव द डिमांड बैक, डिमांड ने पीछे जाना है। और इसका तरीका ये है कि सिंस टैक्स 50 सेंट $0.5 का लग रहा है, तो आपने 3 से $0.5 पीछे नीचे कैलकुलेट करने। 3 से 0.5 कम करेंगे तो लेट्स से 2.5 हो जाते हैं, यहाँ पे 2.5 है, सही है? 2.5 है ना, तो बेसिकली 2.5 आपने इसको यूं लेके जाके यहाँ पे लेके जाना। दिस will tell you that this is where how much the demand shifts backward. देखो मैं डिमांड को किस तरह लेके जा रहा हूँ। अब होगा ये कि पॉइंट दिस डिस्टेंस इज 0.5, दिस डिस्टेंस इज 0.5, दिस डिस्टेंस इज 0.5। तो मैंने बेसिकली किया कि डिमांड को आई मूव्ड इट बैक बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स। इज दैट ओके? ये बड़ा जरूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड आई मूव द डिमांड बैक। टैक्स लगा था $0.5 का,
अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पता है, मैं फिर बताता हूँ। सर रिपीट कर दें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि टैक्स कितना लगा। हाउ मच was the tax that was put on people? सर 0.50। $0.50 का टैक्स लग गया ना, विच इज 50 सेंट्स। तो पहले आपने करना ये कि डिमांड को पीछे मूव करना है, और यू हैव टू मूव इट बैक बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स। जितना टैक्स लगता है ना, उतना ही डिमांड पीछे जाएगी। अब बड़ा मुश्किल है ना कि पता करना कि ये डिमांड इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी। एंड द वे टू एक्चुअली डू इट, ड्रॉ इट एक्चुअली इज कि आप करते ये हैं कि आप $3 से ना कैलकुलेट करते हैं कि यार इफ यू गो डाउन फ्रॉम हेयर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो 3 से कम आते हैं तो कितनी हो जाती है? 3 माइनस 0.5 इज 2.5। आपने 0.5 का ना जो है ना यहाँ से नीचे आया, तो यू मूव डाउन फ्रॉम $3 to $0.5 लेस, विच इज $2.5। और आपने कहा यार अगर बिल्कुल इधर से मैं नीचे आना शुरू हुआ ना, आई कम डायरेक्टली डाउन फ्रॉम हेयर बाय 0.5, तो ये जो जगह है ना, और फिर मैं लाइन ड्रॉ करूं जो इस जगह को कट कर रही हो इस तरह, तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस 0.5 होगा। इन दोनों के दरमियान में 0.5 डिस्टेंस होगा। इन दोनों के दरमियान 0.5 होगा, 0.5 होगा। इक्वली डिस्टेंस होंगी ये सारा जो डिस्टेंस होगा ना इन दो लाइनों के दरमियान, बिकॉज आपने इस तरह ड्रॉ करके लाइन पैरेलल काटी है। So these are all going to be 0.5 के distance, which is going to be saying that demand has fallen by 0.5. पहले आपने demand को गिराना है by 0.5. Once you decrease demand by 0.5, now that is when you can now start looking at equilibriums. इधर लेके इसको थोड़ा साफ कर दूं। पहले आपने किया कि आपने डिमांड को कम कर दी by 0.5, और आपकी डिमांड का पीछे चलेगी by 0.5. It is imperative that we understand कि जब मैंने डिमांड को पीछे मूव किया, तो how this backward move is worth $0.5, $0.5 की बैकवर्ड मूवमेंट, बिकॉज मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 0.5 है, और पैरेलल शिफ्ट किया है। इसका मतलब है इन दो लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है ना 0.5 सेंट्स या $0.5 का। वंस यू हैव डन दिस, तो आपको पता लग जाएगा कि यार अब ये वाली जो D1 है ना, ये तो गायब होगी ना, इट हैज शिफ्टेड बैकवर्ड्स। नाउ दैट इट हैज शिफ्टेड बैकवर्ड्स, तो एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ये वाला इक्विलिब्रियम। पहले ऊपर वाला था, नाउ यू हैव B एज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट कर रही है, एंड दिस इज गोइंग टू डिटरमिन कि यार किस क्वांटिटी की चीजें। इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम वाज वेयर क्वांटिटी डिमांडेड वाज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो लेट्स से कि 90 चीजें बन रही, इज दैट ओके? और 90 चीजें बन रही हैं, तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे कीमत होगी। लेट्स से कि दिस इज 2.75। हाँ जी, ये 2.75 है। इतनी बात समझ में आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर आगे मैं अगली बात करूंगा। यस सर। अब मुझे ये बताएं, ये कीमत क्या होनी चाहिए? यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊं 3.25। 3.25 होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगले वाले ग्राफ पे जाता हूँ ना। ये थोड़ा सा ये नंबर्स जो है ना, ये डिफरेंट है, बिकॉज उसने
डिफरेंटली इसको मूव किया है, बिकॉज बट किया उसने यही है कि उसने यहाँ से 3 से कैलकुलेट किया 0.5, तो ये जो जगह थी ना वो 2.5 थी, एंड उसने कहा जी ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो आ रही है ना, आप जो मैंने 2.75 लिखी थी, उसने 2.8 लिखी, और 2.8 के ऊपर फिर उसने क्या किया, सप्लाई के ऊपर उसने बताया कि यार ये फर्क है, ये कितना फर्क है, बिकॉज आपने कहा था डिस्टेंस हमेशा 0.5 होगा बिटवीन दीज टू लाइन, इन दो लाइनों के दरमियान सिंस आपने मूव भी 0.5 किया, ये भी 0.5 है, ऊपर वाले भी 0.5 है, दैट इज दिस व्हाई दिस अपर वैल्यू इज 3.30. अच्छा, what I want you to now do is take a look at this and tell me कि यार अगर जब टैक्स नहीं था तो कीमत थी $3, जब टैक्स लगा तो कीमत कितनी होगी? हाँ जी, तो 330, $3.30 या $3.30 होगी। अच्छा, $3.30 तो होगी कीमत, ये वो कीमत है जो बायर पे कर रहा है, और उस 3 पॉइंट जो जो ये जो बायर पे कर रहा है ना 330, वो किसके पास जा रहे हैं पैसे? ये जो पैसे पे कर रहा है वो किसके पास जा रहे हैं? तो बायर सेलर। सेलर के पास जा रहे हैं, तो आइडियली सेलर को भी ये मिलने चाहिए। सर उसको टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स कट जाएगा। एग्जैक्टली होगा ये कि $3.3 जो है ना, वो जो सेलर के पास आएंगे उसमें से वो $0.5 का टैक्स देगा, और इवेंचुअली बायर को जो मिल रहा होगा ना कीमत, वो 280 मिल रही है, 2.80 मिल रही है। इज दैट ओके और नॉट? यस सर। तो पैसे जो आए टोटल 3.30 आए सेलर के पास, लेकिन उसमें से उसने 0.5 दे दिए टू द गवर्नमेंट। Eventually, what the seller receives is 2.80. What the buyer was paying was 3.30. लेकिन जो याद रखने वाली बात है कि जब टैक्स नहीं था तो कीमत क्या थी? $3. $3. So when there was no tax, the price was $3. With tax, the buyer is now paying not $3 but $3.30. So how much is the buyer paying additional? $0.3 additional पे कर रहा है buyer. पूरा का पूरा 0.5 नहीं पे कर रहा, ऑल्दो आपने कहा कि मैं बायर पे टैक्स लगा रहा हूँ, और सेलर को जो पहले $3 मिल रहे थे उसको अब $3 नहीं मिल रहे, $2.8 मिल रहे। तो बेसिकली वेरी नाइस तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज कि सेलर को पहले $3 मिल रहे थे लेकिन अब $2.8 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेलर को कितनी हिट पड़ी है? $2.2 की हिट पड़ी है। Take a second to understand this. What we have said is कि जी $3 का की आइसक्रीम बिक रही थी, जब $0.5 का एडिशनल टैक्स लगाया गया तो कीमतें बढ़ गई to 3.30। 3.30 में से जो है 0.3 was the additional tax that the buyer gave, and 0.2 was the additional tax that the seller gave. Seller ने कहा कि so this is how I would want you to think about it. Let me just remove this. I would like you to think of this in terms of the following. जब टैक्स लगाया गया तो पहली बात तो ये है कि क्वांटिटीज जो प्रोड्यूस हो रही थी ना, पहले 100 प्रोड्यूस हो रही थी, हुकूमत ने टैक्स लगा के प्रोडक्शन कम की करवा दी मार्केट के अंदर।
That's the first thing that we need to remember. सर ये समझ नहीं आ रहा, तो 2.5 पे आना था तो 2.8 पे क्यों आया है? अच्छा, तो चले फिर से। तो देखिए, आपने $0.5 का टैक्स लगाया, ठीक है? कीमत कितनी थी? $3 चल रही थी, सही है? जब आपने $3 की कीमत थी और आपने $0.5 का इसको मैं काट के ना $0.5 कर देता हूँ, वरना तो बैठ के हम कंफ्यूज होते रहेंगे। $0.5 इस तरफ होने चाहिए। $0.5 का टैक्स लगाया। हमने कहा ये कि जब बायर के ऊपर टैक्स लगा ना ये $0.5 का, तो उसकी डिमांड गिर गई बाय 0.5, बिकॉज उसको ऊपर 0.5 का टैक्स लगा तो डिमांड उसकी फेल बाय $0.5। तो ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट हुई ना बैकवर्ड्स, वर्टिकली स्पीकिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डिमांड कर्व्स इज $0.5 का। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ए को, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आप नीचे जाए ना टू द न्यू डिमांड कर्व, तो दिस डिस्टेंस इज $0.5। तो अगर आप इधर से मूव करेंगे ना इस साइड पे, यहाँ पे, तो दिस विल बी 2.5। 2.5 का मतलब है 3 से 0.5 कम होकर 2.5 पे आ गए। तो द डिमांड कर्व बेसिकली हमने कहा ये कि शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, मूव्स डाउनवर्ड्स बाय $0.5। बट नोटिस कि ये जो प्राइस है ये 0.5 से ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस is going to be different from what happens to the buyer when his demand falls by 0.5. When his demand falls by 0.5, a new equilibrium price is decided. And in this case, in this diagram, this new equilibrium price that is decided is 2.80, this place. It is this place. And यहाँ पे कीमतें 2.8 डिसाइड होगी, क्योंकि डिमांड कम होगी ना। प्राइस किस तरह डिसाइड होती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करती है, दैट इज वेयर प्राइस इज डिसाइडेड। आपने टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, लोगों की डिमांड फॉर आइसक्रीम गिर गई, एंड जो कीमत पहले इक्विलिब्रियम 3 थी वो कम होकर 2.8 आ गई। लेकिन मसला ये है कि 2.8 तो आ गई मार्केट के अंदर, लेकिन आपने इसके ऊपर टैक्स भी लगाया हुआ है। तो जब 2.8 की कीमत के ऊपर टैक्स भी देना है, कितना टैक्स देना है? $0.5 का देना है। तो 2.8 प्लस 0.5, अगर यू मूव अप तो ये 0.5 का डिस्टेंस है बिटवीन द ब्लू लाइन एंड द ब्लैक लाइन। तो दैट इज व्हाई द अपर वैल्यू इज 2.8 प्लस 0.5, 3.30। तो जब बायर अब खरीदेगा तो बायर जो है वो पैसे देगा 3.30 अगेंस्ट इट। कीमत होनी चाहिए थी, अगर नो टैक्स, इफ देयर वाज नो टैक्स एंड डिमांड हैड फॉलन डाउन, द प्राइस वुड हैव बीन 2.80। इसको मैं कोशिश करूं, अगर आप आई कैन मेक इट ओवर हियर ऑन अ वाइट स्क्रीन। अच्छा, so let me see if I can explain it over here. So there is demand and there is supply. Sorry, demand is नहीं, there is demand and supply. ये जी मार्केट है आइसक्रीम्स की, $3 की आइसक्रीम बिक रही है। दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी। बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर सम और रीजन की वजह से ना होता ये है कि डिमांड गिर जाती। कोई वजह बताएं डिमांड गिरने की? लोगों की इनकम कम हो जाती है, लेट्स से लोगों की इनकम कम होती है, डिमांड गिर, sorry, let me just go to this other software, and that's where I'll be able to actually make better graphs. Start and I hope आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। Yes, sir. आ रही है। So this is the demand for ice creams, and this is the supply for ice cream, and this is the price of ice cream, which is $3, and this is 100 ice creams being produced at $3. This is equilibrium point A.
फिर होता ये है कि फॉर सम ऑड रीजन डिमांड गिर जाती है, डिमांड गिर जाती है तो नई इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो नए इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो गया। लेट्स से कि ये गिर के, हम वही वाले एग्जांपल इस्तेमाल करें, 90 हो जाती है और ये कम हुई है, तो कीमतें गिरी हैं या बढ़ गई हैं? डिक्रीज। डिक्रीज ऑब्वियसली 2 पॉइंट, लेट्स से 2.7 होगी, थोड़ा सा डिविएट कर लेते हैं उस एग्जांपल से। अब याद रखें कि हम जो पढ़ रहे ना, हम कह रहे हैं कि यार ये अगर अभी इस सिनेरियो में कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, जब टैक्स नहीं लगा हुआ तो the buyer is going to be buying, the price of the good is going, ice cream is going to be 2.7, बायर जो आके वो इसके 2.7 देगा, सेलर को 2.7 मिल जाएंगे, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, राइट, बिकॉज टैक्स तो लगा नहीं है। You don't need to give any money to anybody else. The buyer gets the buyer pays 2.7 for the ice cream, the seller gets 2.7 for the ice cream, and the story stops over here. But when you talk about intervention of the government and them putting up a tax on people, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि जब लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा ना, बायर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, तो डिमांड गिरेगी फ्रॉम द ब्लैक डिमांड टू द ब्लू डिमांड। तो when that happens, तो कीमतें ऑटोमेटिकली 3 से 2.7 पे चली जाएंगी, बट 2.7 के ऊपर फिर हुकूमत ने टैक्स भी लगाया हुआ है पर यूनिट, तो जो बायर है ना उसको 2.7 प्लस द टैक्स देना है, तो टैक्स कितना लगाया है? $0.5 का लगाया है, तो 2.7 प्लस 0.5 इज 3.2, और उसको किस तरह करेंगे आप? यू गो फ्रॉम अप हियर टू दिस डिमांड कर्व एंड यू रियलाइज कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी 3.2। अब हो क्या रहा है कि कीमत तो डिसाइड होगी थी 2.7, बट जब सेलर गया, बायर गया खरीदने के लिए, तो उसने 2.7 प्लस द टैक्स 3.2 रुपीज दिए, सेलर को दिए, तो क्योंकि कीमत जो थी ना प्लस टैक्स इंक्लूसिव टैक्स, आप खाना खाने जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि जी बिल तो इतना है प्लस टैक्स भी देना है आपको, तो बिल तो एक्चुअली 2.7 था, आपने प्लस टैक्स 0.5 डाल के ना कीमत जो दी रेस्टोरेंट वाले या आइसक्रीम वाले को, वो 3.2 रुपीज दिए। अब 3.2 रुपीज जब बायर के पास आए ना, तो उसने इसको सारे के सारे अपने पास नहीं रखने, बिकॉज उसने इनडायरेक्टली इसको फाइल भी करना है कि मेरे पास टैक्स कलेक्ट हुआ था। वो करेगा कि 3.2 में से 0.5 को जो है ना, जो टैक्स आपने दिया था वो हुकूमत को दे देगा, तो इवेंचुअली बायर को कितने, सेलर को कितने मिलेंगे पैसे? नॉट 3.2 बट 2.7, बिकॉज 3.2 में से 0.5 उसने हुकूमत को वापस कर दी। Does that make a little sense? I don't know. सर इस केस में फिर जो फर्म इटसेल्फ है वो टैक्स नहीं अपने ऊपर ले रही, कोई सिर्फ सारा कंज्यूमर पे डाल रही है जो पॉइंट ले रही है ना। देखिए कीमत जो है ना, सॉरी लेट मी गो बैक टू दैट, कीमत जो है वो देखिए, कीमत $3 थी, और $3 के ऊपर बिकॉज ऑफ टैक्सेशन हैपनिंग, कीमत $3 से बढ़ के 3.2 पे चली गई, और 3.2 के अंदर $0.5 वाज द टैक्स। तो इस सिनेरियो के अंदर $0.2 एडिशनल जो है ना वो बायर दे रहा है, और 0.3 जो है ना वो कंपनी बेयर कर। सही है सर, ठीक है, समझ आ गया। So comparison has to be what the original price was. The original price was $3. Eventually the thing got sold for, in this case, in this slide, for $3.3. टैक्स था 0.5 का। इस केस में ज्यादा टैक्स जो है ना वो कंज्यूमर से लिया जा रहा है और कम टैक्स बायर दे रहा है, तो देयर इज अ शेयरिंग ऑफ टैक्स हैपनिंग।
इसको समझने का आसान तरीका ये है कि मुझे पता है कि टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है. कैन यू एक्चुअली आर यू एबल टू आइडेंटिफाई टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है? व्हाट इज द टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? 0.50 वो तो पर यूनिट है ना, टोटल कितना है? तो व्हाट इज द टोटल टैक्स बीइंग कलेक्टेड? 0.50 multiplied by units sold. यस. तो देखें ये जो डिस्टेंस था ना, हमने ओरिजिनली कहा था कि ये मूवमेंट हुई ना, ये 0.5 की मूवमेंट थी. 0.5 की जो टैक्स लगा ना 3.6 से 2.8 तक का. दिस multiplied by how many things are being made. So 0.5 times how many things are being made and sold? 90. So this box over here is called the tax ka revenue. .5 times 90, तो ये 45 रुपीस का हुकूमत पाकिस्तान के लिए टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है जब आइसक्रीम बिकती है Sir, including tax? इंक्लूडिंग टैक्स? Sir, $3.3 multiplied by 90. राइट. सो 3.3 की कीमत थी टाइम्स 90 बिके, तो जो भी बनता है दैट्स योर टोटल रेवेन्यू. प्रोड्यूसर को कितने पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है इवेंचुअली टैक्स डिडक्ट होके? 2.8 multiplied by 90. So it is this box that is which the producer gets. 2.8 times 90. Achha, so this was the case in which the seller buyer was taxed. अब ये सेकंड सिनेरियो है जिसमें सेलर को कहा जा रहा है कि यार तुम पे टैक्स लग रहा है 0.5 का. कहा जा रहा है. नोटिस कि यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना कि जिस मर्जी को टैक्स किया जाए, eventually whoever gets taxed, eventually what happens is the buyer has to pay more, the seller receives less. Right? Whoever you tax, eventually जो बंदा खरीद रहा होगा उसने ज्यादा पैसे देने होंगे और जो बेच रहा होगा उसको कम पैसे मिलेंगे. अब now this is the same graph but little different in the sense कि अब टैक्स लग रहा है सेलर पे. तो जब सेलर पे टैक्स लग रहा है तो सप्लाई कर्व जो है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है. What happens in the curve when the cost of production goes up? सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज हमने कहा था सप्लाई तब शिफ्ट होती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपैक्ट होती है. चैप्टर नंबर 3. तो सप्लाई कम होगी, विल मूव बैकवर्ड्स. अब हाउ डू आई डिसाइड कितना बैकवर्ड्स जाना है? इधर से एक लाइन में ड्रॉ करूंगा. स्टेप स्टेप इज टू ड्रॉ लाइन अप एंड फ्रॉम हेयर 3 के अंदर टैक्स ऐड करूं मैं 0.5. तो 3.5 होता है, तो लेट्स से 3.5 इज दिस प्लेस. ये वाली जगह 3.5 है, ये 3 है तो 3.5 ऊपर होगी ऑब्वियसली. तो यहां से मैंने जाना है इस तरह डॉट 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 टू दिस पॉइंट. ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉइंट है. Once I've identified this point, I need to draw a supply curve that is. नोटिस के फिर इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितना फासला है? ये वाला फासला है. कितना फासला है? 0.5. तो मैंने सप्लाई को 0.5 से पीछे मूव कर दिए. सो आई हैव अ न्यू सप्लाई कर्व. डिमांड की केस के अंदर हमने डिमांड को पीछे मूव किया था विद द सेम प्रोसेस. हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ऊपर की तरफ and we said कि जी this is how the distance between these two curves at all points now is going to be 0.5. Now that you've done that, अब आपने देखना इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है. इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करती है. तो do you have
demand, you have supply, so this is a new equilibrium. This is equilibrium point B. अब equilibrium point B के ऊपर एक कीमत है, राइट? और याद रखना है कि जो भी कीमत होगी ना, these 2 points have a distance of how much? 0.5, 0.5. right? So hypothetically speaking, I can say कि यार ये मैंने मूव किया तो कीमत जो आई ना इधर यहाँ पे वो आ गई 3.2, और जो नीचे वाली कीमत है वो कितनी होगी? 2.8, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस दोनों का आपस में 3.2 और इसका 2.8 का 0.5 है. Now that we've discussed this, what we are saying is 3.3 नहीं होगा? 3.3 कर लो. अगर 3.3 करोगे इसके ऊपर तो नीचे 3 कह रहे हो, 3.3 होगा. सॉरी, माय बैड. सही है. दिस डिफरेंस 0.5 बना चाहिए. आई स्टैंड करेक्टेड जी, 3.3 होगा. अच्छा, अब हो क्या रहा है? जब ये आइसक्रीम बिक रही है तो कितने की बिक रही है? टैक्स लगाने के बाद 3.3 रुपीज की बिक रही है. अब 3.3 रुपीज में से जो बिक रही है, बायर आके $3.3 आइसक्रीम का दे रहा है, तो ये मेरे पास आ गया एज द सेलर, मेरे पास आ गया. अब 3.3 रुपीज जब मेरे पास आया ना, तो मैंने कहा मैंने हुकूमत पाकिस्तान को $0.5 इसमें से पैसे देने, टैक्स देने, और जो पैसे बच जाएंगे वो मेरे पैसे होंगे, विच इज गोइंग टू बी 2.8. So what the seller gets is 2.8, what the buyer pays is 3.3, what the government gets is the 0.5 tax that they impose. इसको जरा इधर देख लें तो ये जो है ना, this is take a second to just look at it and notice के this is what we've said कि जब सेलर पे टैक्स लगाया तो उसकी जो सप्लाई कर्व है मूव्ड बैक बाय एग्जैक्टली $0.5. The tax on the seller shifts the supply curve upwards by the amount of the tax. It moves backwards or upwards by the amount of the tax. This distance would be 3.5 is what is important to remember. And उससे होगा ये कि अब नई जो आइसक्रीम है वो $3.3 की बिक्री होगी, और $3.3 में से 0.5 जाएगा to the government, and 2.8 would be the revenue जो after tax producer के पास जाएगा. Now looking at this graph, can you tell me what the tax revenue is? Tax revenue क्या है? 0.5 times 90. तो ये जो डब्बा है, this is actually representing how much tax revenue gets collected. Total is पूरा जो टॉप वाला है basically the complete revenue, और नीचे वाला बॉक्स जो है is the revenue that the supplier gets. Notice नोटिस के अब इस केस में टैक्स ज्यादा कौन दे रहा है? बाहर दे रहा. बायर दे रहा है ना. अब सवाल ये है कि यार हुकूमत ने टैक्स लगाया. जब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया ना, तो नाउ यूर थिंकिंग यार इन्होंने $0.5 का टैक्स लगा दिया है, अब मैं सारा का सारा गादा पास कर दूं बायर के ऊपर. लेकिन अभी कितना पास हुआ है? 0.3 पास हो गया है बायर को, पर पहले ₹3 का बिक रहा था ना, तो अब 3.3 की खरीद रहा है. तो इसका मतलब है कि एडिशनल 0.5 का टैक्स रिजल्टेड इन 0.3 being paid as an additional by the buyer and 0.2 being borne by the firm. अगर फर्म को लगता ना कि यार ये
टैक्स लगाने से ना ये जो लोग है ना, क्वांटिटी नहीं गिरेगी बहुत ज्यादा, लोग नहीं छोड़ के जाएंगे, पीपल विल कंटिन्यू ऑन बाइंग दिस गुड। तो वो सोच सकता था कि यार ज्यादा टैक्स जो है ना मैं ट्रांसफर कर देता हूँ बायर्स के ऊपर और कम खुद कम देता हूँ। That is when the seller is not afraid of the fact that quantity demanded will fall by too much. So what I'm basically trying to say is कि जब टैक्स लगता है ना तो एक डिसीजन होती है जो सेलर ने लेनी है। So it is so what I'm trying to basically say is कि जब आप टैक्स लगाते हैं ना, जब टैक्स लगता है तो सेलर ने डिसाइड करना होता है कि यार ज्यादा बर्डन मैं लूं या ज्यादा बर्डन ट्रांसफर कर दूं बायर के ऊपर। अब इसका फैसला किस तरह होता है इज द रियल क्वेश्चन। हाउ डू यू डिसाइड कि यार कितना कि ज्यादा बर्डन सप्लायर खुद ले या ज्यादा ट्रांसफर कर दे। दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। क्या ख्याल है, किस तरह डिसाइड करता होगा कि यार ज्यादा बर्डन मैं लूं या इलास्टिसिटी। क्या ख्याल है? Tax incidence tries to establish who pays the tax in the end. जब टैक्स लगेगा तो इवेंचुअली ज्यादा टैक्स कौन देगा और क्या प्रोपोर्शन होगी, बायर ज्यादा दे रहा है या सेलर ज्यादा दे रहा है। समटाइम्स ना होता ये कि सेलर्स को डर होता है कि यार अगर ये कीमत मैंने बढ़ा दी ना बहुत ज्यादा तो बायर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो इस तरह करता हूँ कि यार मैं ज्यादा जो टैक्स का बर्डन है ना खुद अपने पे ले लेता हूँ और इवेंचुअली कीमतें ज्यादा बढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ती, थोड़ी सी बढ़ती हूँ। कन्वर्सली अगर कोई नेसेसिटी होगी ना तो सेलर ये सोचेगा कि यार ये तो जरूरी चीज है, इसको लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। तो अगर मैं $3 से बढ़ा के 3.3 पे ले जाता हूँ तो उन्होंने खरीदना ही खरीदना है। तो they will have to pay the additional $0.3. I'll only pay 0.2. I'll pay less, they can pay more. बट अगर उसको डर है ना कि ये भाग जाएंगे तो ही प्रॉब्ली से कि यार 3 पॉइंट कीमत बढ़ाते हैं फ्रॉम फ्रॉम तो ही प्रॉब्ली से दैट कीमत बढ़ाते हैं। तो $3 का था, करते ये कि कीमत बढ़ाते हैं बाय 3.1। तो बायर जो है वो 3.1 पे कर दे तो इवेंचुअली बायर कितना एडिशनल टैक्स पे करेगा? 0.14 नहीं, बायर 1.1 बायर तो 0.1 एडिशनल पे करेगा। कंपनी कहती है यार 0.4 मैं पे कर दूंगी और मुझे जो है ना इवेंचुअली मिलेगा 2.7। बिकॉज उससे डर है कि यार अगर ये कीमतें ज्यादा बढ़ गई ना तो बायर कहेगा यार मैं तो खरीदता नहीं। उसको डर ये है कि अगर ₹3 से मैंने कीमतें बढ़ा के 3.3 कर दी, 3.3 कर दी तो बायर कहेगा यार और 3.3 में से 0.3 बायर दे और मैं 0.2 दे दूं। उसे डर ये है कि 3.3 कीमत होगी तो लोग कहेंगे यार हमें तो खरीदना है। एंड ये जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना ऑफ पीपल कि यार खरीदना है कि नहीं खरीदना, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। कि कीमत बढ़ाएंगे तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, इलास्टिसिटी के चैप्टर में। तो अगर तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है ना, यार कीमत बढ़ाने से डिमांड नहीं गिरती, तो लेट मी जस्ट so if your demand is inelastic, inelastic का मतलब है कि अगर मैं अपने गुड की कीमत बढ़ाऊंगा बाय 10% तो डिमांड जो है वो गिरेगी बाय ओनली 1%। तो इस केस में ना
सेलर कहेगा कि यार कीमत बढ़ा के ना 3.3 कर देता हूँ, ताकि बायर 3.3, बिकॉज डिमांड नहीं गिरेगी इतनी ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा 0.3 टैक्स बायर दे, मैं 0.2 दूँ व्हेन द डिमांड इज इन इलास्टिक। जब मुझे पता है कि यार कीमत बढ़ेगी तो रिएक्शन इतना नहीं आएगा लोगों को। जब डिमांड इलास्टिक होती है, तो होता ये है कि जब कीमत बढ़ाई जाती है ना 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है बाय 10%, बाय 20%। अब इस केस में सेलर को डर होता है कि यार कीमत बढ़ा दी ना मैंने 3 से लेकर 3.3 पे, तो लोग ही खरीदना बंद कर देंगे। तो वो कहता है यार मैं कीमत 3 से बढ़ा के ना खाली 3.1 पे करता हूँ, और बायर से के ऊपर खाली 0.1 का एडिशनल टैक्स लगाता हूँ, और बाकी जो हुकूमत को 0.5 देने हैं उसमें से 0.4 मैं खुद दे दूंगा। Does that make sense to you guys? So the जी सर। seller basically is trying to look at the product. It is looking at the elasticity of the product and then deciding कि यार अब इसमें से कितना पोर्शन मैं दूं और कितना पोर्शन जो है वो बायर दे। बट आई नीड टू मेक श्योर कि यार मैं कीमतें इतना ना बढ़ाऊं कि सारे के सारे लोग ही भाग जाएं। Tax incidents. Let me just clear this slide up. So tax incidents tries to establish who pays the tax in the end, कि टैक्स किसने eventually देना है, और टैक्स किस तरह डिवाइड होगा बायर और सेलर के ऊपर। और इसमें if you look at this, the answer to these questions depends on the elasticity of the demand and supply. How reactive is increasing prices to demand and supply, quantity demanded and quantity supplied. So जब डिमांड इन इलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है, then this is the scenario when प्राइस बढ़ाने की वजह से रेवेन्यूज नहीं गिरने, उनके लोगों ने चीज को खरीदना ही खरीदना है बिकॉज डिमांड इन इलास्टिक है। तो आप जो है ना कर सकते हैं कि लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स ट्रांसफर कर दें कि यार बायर्स के ऊपर जुल्म करें, उनके ऊपर यार तुमने तो खरीदना ही खरीदना है, तुम ही दो टैक्स। जब सिनेरियो ऐसा होता है, जब डिमांड इलास्टिक होती है, तो लार्जर शेयर ऑफ टैक्स देन फॉल्स ऑन द सेलर। सेलर कहता है यार मैंने टैक्स ज्यादा ट्रांसफर कर दिया बायर के ऊपर, तो वो जो है ना वो चीज खरीदेगा नहीं। और जब ये डिमांड इलास्टिक यूनिट इलास्टिक होती है सप्लाई, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो है बर्डन टैक्स का। तो ये नोटिस करें कि हायर पोर्शन नोटिस करें कि सप्लाई और डिमांड दोनों, सॉरी सप्लाई डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, सप्लाई भी इन इलास्टिक है, वैसे जैसे डिमांड इलास्टिक की हुई है उन्होंने। Take a second to look at this. Okay, don't take a second to look at this. The slides are up on the LMS. You are required to actually download these and look at these last 3-4 slides when you have some time on your hands. So this was everything that we wanted to discuss in as a revision for what we discussed last time. Hopefully आप लोगों के कुछ ना कुछ समझ में आ गया कि क्या बात हो रही है, and you've understood how the tax burden gets shared between the buyer and the seller, and you've understood how the buyer and seller kind of based on the elasticities of the demand and supply, you decide how much of the tax burden gets transferred to the buyer and the seller. Acha, with that, everything that we wanted to cover a review for from last time is done. Now we are starting off with something new. So we will be covering this in the next 30 minutes, after which we will be calling it a day. And उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मेरे देनी है, तो आपने क्लास टास्क के तौर पे करनी है, वो LMS पे आपने अपलोड करनी है। So I'll upload it in the LMS when we give a break at 10:30.
you will be required to open the book up and review these 10 principles जो मैं पहले आपके साथ review करूंगा, and then do that assignment on those 10 principles by 11:30. तो 11:30 डेडलाइन होगी, उस तक आपको ये काम कंप्लीट करके अपलोड करना है 11 के ऊपर. अच्छा, so this now what we're doing is we're starting our discussion on chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 को इफ यू रिकॉल हमने डिस्कस नहीं किया था. वी स्टार्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट फोर्सेस. वी डिड नॉट वांट टू डिस्कस बेसिक्स इनिशियली. तो थोड़ा सा जो है ना, आई वांट टू रन यू थ्रू दीज बेसिक्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली सम प्रिंसिपल्स अबाउट इकोनॉमिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, सम कॉन्सेप्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो ऑफ, एंड उसके बाद assignment is going to be about these 10 concepts. So microeconomics की definition तो हमने डिस्कस कर ली थी पहले, तो 10 principles के बारे में बात कर लेते हैं. आपको याद होगा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बात की कर रहे थे ना, तो हमने कहा था कि जी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज. यार आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, and how you utilize them is called microeconomics. And how you का मतलब ये, in the economy you have individuals, you have which is us, households, workers, then you have firms, and then you have governments. How we are utilizing our limited resources is microeconomics optimally. तो इसके अंदर वो scarce का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था. तो the first term that we want to talk about is scarcity. क्या होती है जी scarcity? Sorry, कमी. कमी, हाँ. Resources. Limited resources. So the first thing that we want, the term that we want to discuss is scarcity. Resources limited है, and because of this limitation, जितना हम चीजें चाहते हैं ना, जितना हम कंज्यूम करना चाहते हैं, जितना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, we can't because our resources are limited. Right? We want to have a great living standard, but our resources are limited. So there is scarcity of resources in the economy. And economics is how you manage these scarce resources, right? अच्छा, प्रिंसिपल नंबर 1 कि लोग जो है जिंदगी के अंदर पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स. ट्रेड ऑफ्स का क्या मतलब होता है? Any idea as to what trade off means? Yeah, I am too. तो किसी डिसीजन के consequences, मतलब अगर एक काम करते हैं उसका cause and effect वाला जो Exactly. trade off होगा probably. Yeah. The point is कि देखें, आप आके अभी जो ना सुबह सुबह उठ के ये क्लास ले रहे हैं. The trade off over here is that you could have gone to the meal and had halwa puri over there. और आपको you traded off leisure for coming and doing some sort of work with me today. So you made a choice, right? You traded off one thing for the other, and maybe because you valued this thing more than the other thing. So basically, the 10 principles of economics, and these are this is basically going to be telling us how people make decisions, how people interact, and how the economy works. ये 3 basic broad ideas हैं कि लोग किस तरह decision करते हैं, how they interact, and how the economy works. जो पहला component है ना about these 10 principles of economics. So इस chapter का नाम है 10 principles of economics. तो उसका जो पहला कंपोनेंट है कि लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं. और हम कह रहे हैं कि जी जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है ना, तो लोग पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, दे हैव ऑप्शंस, एंड दे weigh these options, and they give one they basically give one option up to do the other thing.
एंड जो जरूरी बात है ना वो ये है कि जो ट्रेड ऑफ्स आप कर रहे होते हैं ना तो इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है आपको. तो एवरी ट्रेड ऑफ हैज अ कॉस्ट. एक कंपनी है ना वो कहती है कि यार मैंने एक एक बंदा है, बिजनेसमैन है, वो ही रन्स अ कंपनी एंड ही हैज सम मनी लाइंग अराउंड. और जो पैसा पड़ा है ना, ही हैज ऑप्शन कि यार इस पैसे को मैं या तो बैंक में रख के सूद कमा लूं, या फिर इस तरह करूं कि एक और फैक्ट्री जो है ना, मेरी एक फैक्ट्री जो है दूसरी फैक्ट्री लगा लूं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लूं. Notice कि now he's facing a trade-off. Should I be putting my money in the bank and relaxing and seeking rent out of it? Or should I be putting in an effort and establishing a new factory and expanding so that in the future I earn more? So there is a trade-off that he's facing. So people make decisions, and in making decisions, they face trade-offs. And there are costs involved when people make trade-offs. And these trade-offs की जो cost है ना, इनको कहते हैं opportunity costs. So they're called opportunity cost. So basically जब मैंने कहा ना कि यार मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो the cost of this decision is कि मुझे वो सूद मिल सकता था अगर मैं पैसे बैंक में रखता, लेकिन मैंने तो सारे के सारे पैसे उठा के फैक्ट्री को एक्सटेंड करने में लगा दी, एक्सपैंड करने में लगा दी. So the cost that I bore was an opportunity cost, and this opportunity cost lost was the interest from the bank that I could have gotten. But I said, yeah, I'm willing to do this trade-off because I see more value in that other thing. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, उसके अलावा एक टर्म है एफिशिएंसी. अभी हमने कहा था ना एलोकेटिव एफिशिएंसी, एंड वी सेड कि जी जब भी प्राइस सीलिंग लगती है या प्राइस फ्लोर लगता है या टैक्स लगता है, तो देयर इज अ जितनी चीजें बननी चाहिए थी ना, या तो शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाते हैं या सरप्लसेस क्रिएट हो जाते हैं, या जितनी चीजें बननी चाहिए थी ना वो उतनी चीजें नहीं बन रही होती. तो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ टैक्सेस वी नोटिस्ड कि यार 100 बन रही थी जब टैक्स नहीं था, 3 रुपए का की आइसक्रीम बिक रही थी. जब आपने टैक्स लगाया तो 90 बनना शुरू हो गई. So the society could have gotten 100 ice creams, but because of tax, the market became inefficient. It started producing 90 ice creams rather than 100 ice creams. But नोटिस के जब आप प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर्स डाल रहे होते हैं ना, आप किसी का भला करने के बारे में सोच रहे होते हैं. तो श्योर कि there was a surplus or there was a shortage, but prices were higher or lower, या फिर हुकूमत ने अपनी तरफ से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया. So there is a trade-off between being efficient versus creating equality in the economy. आप इसलिए लगा रहे थे ना सीलिंग के यार कीमतें जो है वो इससे ज्यादा ना जाए. आपको लग रहा था कि यार मार्केट तो कह रही है कीमतें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वी आर एज अ गवर्नमेंट आर गोइंग टू मेक श्योर कि इक्वालिटी और लोगों के लिए आसानी हो. So the property of distributing economic prosperity uniformly among the members of the society is called equality. तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं एफिशिएंसी के और इक्वालिटी के. इक्वालिटी बेसिकली ये कह रहा है कि यार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों के अंदर रिसोर्सेज. और हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन में देखा कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो वो एफिशिएंसी कम कर देती है विद एन इंटेंट के इक्वालिटी बढ़ जाए. तो द गवर्नमेंट इज बेसिकली फेस्ड विद अ ट्रेड ऑफ, यार एफिशिएंसी क्रिएट करूं या इक्वालिटी क्रिएट करूं. और हमने देखा ये कि इन द केस ऑफ सीलिंग्स एंड
floors and taxes, the government is favoring basically equality. वो चाहती है कि यार लोगों के, बिकॉज हमने कहा था हुकूमत का काम होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, लोगों का भला करने के लिए हुकूमत बैठी होती है, राइट? So we notice के there is a trade-off between efficiency and equality. Just like the government, people also face a trade-off. Is that okay? Yes, sir. Moving forward, अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, हमने कहा जी ट्रेड ऑफ होता है, तो यू गिव अप वन थिंग अप टू डू समथिंग एल्स। जब ट्रेड ऑफ कर रहे थे कि यार इधर बैठे हुए सुन रहे मेरी बातें, पता नहीं, तो यू आर ट्रेडिंग दिस, you are basically you've made a choice and you came across a trade off, क्या सोता रहूं या फिर क्लास में आ जाऊं, and there is a cost ये है कि रात को आप सोए नहीं थे, तो द फैक्ट कि आप सुबह सुबह उठ के इस क्लास में आ गए, आप ना यू मस्ट बी नॉट फीलिंग दैट गुड, सर में दर्द हो रहा होगा, यू मस्ट बी लुकिंग फॉर कॉफी और समथिंग, और सारा दिन जो है ना आपका अच्छा नहीं गुजरेगा, बट देयर इज अ कॉस्ट फॉर योर डिसीजन, and this opportunity cost is the cost of something. Definition देख लें क्या कह रही है। Cost of something is what you give to get it, give up to get it. So opportunity cost for attending this class is there. नोटिस के वो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, 18 साल 16 साल की उम्र में, पढ़ते नहीं है, बिकॉज उनकी जिंदगी में एक पॉइंट आता है, उनके पास होता है कि यार पढ़ लें या खेल लें क्रिकेट, दे आर फेस्ड विद अ ट्रेड ऑफ, एंड द फैक्ट कि वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं जाके, मीन्स के दे in this case they earn a lot, but at what cost? एक हमारा क्रिकेटर होता था मोहम्मद आमिर, पता नहीं आप लोगों को उसका पता है कि नहीं पता? पता है सर, पता है सर, यस पता है। सर, पता है उसका, लॉर्ड आमिर। सर पता है सर, सबको पता है। अगर आपको पता है तो फिर आपको ये पता होगा कि पढ़ाई, जब बंदा पढ़ता नहीं है तो फिर क्या होता है। जी सर, ये भी पता है। यस सर। हाँ, सर तो कम उसने बैक भी देखा हो कि जाता है। हाँ कम बैक भी हो जाता है, लेकिन फिर वो टेंटेड तो रहा ना यार सारी जिंदगी। तो देयर वाज अ ट्रेड ऑफ, उसने कहा यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जबरदस्त स्विंग बॉलर हूँ, पेस बॉलर हूँ, मैं क्रिकेट परस्यू करूंगा, and he was willing to pay the price. So there was a price involved in not pursuing education and going for cricket. Eventually subjective बात होगी कि यार फायदा हुआ नुकसान हुआ, but there is a trade-off. So people when they're making decisions, they come across trade-offs and there is a cost involved as well. Rule number 3 ये है कि जो लोग हैं ना वो बेवकूफ नहीं है, they are rational and they think with purpose and systematically, ताकि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। लोग इंटेलिजेंट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, कि जब लोग हैं वो रैशनल लोग हैं, दे थिंक प्रॉपरली एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑन द मार्जिन्स। याद है हमने कोई हैव वी टॉक्ड अबाउट मार्जिनल कॉस्ट्स? नहीं बात की ना अभी तक, नहीं की सर, नहीं की। मार्जिनल की बात की, मार्जिन मैंने एमबीए वालों से बात कर। तो मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जो रैशनल लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पहले सेमेस्टर में, तो अगर आप लोग रैशनल होंगे ना, तो आप लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार इस सेमेस्टर में CGPA 4 लेना है,
फिर पीएचडी में क्या करना है यार? पीएचडी में जो है ना, मैं सीजीपीए 5 लूंगा। जो रैशनल लोग है ना, वो सोच रहे होते हैं कि यार इस फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सीजीपीए 4 लेना है, और उससे जो अगला सेमेस्टर है ना, उसमें भी सीजीपीए 4 लेना है। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग ऑन द मार्जिन्स। तो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो 10 क्रिकेट बैट्स बना रही। जब वो कंपनी फैसला करती है ना कि और बनाना है कि नहीं बनाना, तो इट थिंक्स ऑन द मार्जिन्स। और इन द मार्जिन्स का मतलब है वो पता करती है कि यार ये जो 11, अगर मैं 11वां बैट बनाऊं, 11th, तो इस 11th को बनाने के अंदर मुझे मुझे कितनी कॉस्ट आएगी और क्या बेनिफिट आएगा। यार 10 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी और 20 रुपए का बेच दूंगा तो फायदा हो रहा है। तो इट विल लुक एट द 11th गुड विच इज द मार्जिनल गुड। 10 बना रहे थे पहले से क्रिकेट बैट्स। जब फैसला करना है ना कि और बनाना है कि नहीं बनाना, तो हमेशा आप 10वें के जो अगली वैल्यू है ना, 11वीं वैल्यू, जो मार्जिन, आपको याद है क्लासरूम के अंदर मैडम कहती थी कि यार ये कॉपी के अंदर मार्जिन बना लें। मार्जिन मार्जिन और मार्जिनल यही बात है कि यार इससे अगली वाली चीज, वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड अ मार्जिन। इफ यू आर मेकिंग 100 थिंग्स, द मार्जिनल गुड would be the 101st good. तो रूल नंबर 3 is कि people always think on the margins, और बेस्ड ऑन द मार्जिन वो डिसाइड ये करते हैं, फिर रैशनल होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये 11वीं चीज का फायदा नुकसान देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो काम करना है कि नहीं करना। तो पीपल आर रैशनल and systematically purposefully do their best to achieve their objective, and जो भी काम करना होता है ना, जो भी एक्शन लेना होता है, वो मार्जिन्स के ऊपर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो 10 बैट्स बन रहे थे ना, वो कंपनी वाला ये नहीं सोचेगा कि यार वो मैं जो 101 बैट बनाऊंगा उस पर मेरे कितना खर्चा आएगा। वो देखेगा कि यार ये 10 तो मैं बना रहा हूँ, 11वां जो मार्जिनल यूनिट बनाना है उस पर कितना खर्चा आएगा, कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और उससे फायदा क्या आएगा, उसे कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। तो जो भी काम करना होता है ना, लोग जो है ना, वो कॉस्ट और बेनिफिट को देख के फैसला करते हैं कि अगर तो बेनिफिट ज्यादा है तो कर लो, अगर नुकसान ज्यादा है तो ना करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल चेंजेस टू डिस्क्राइब स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स टू द प्लान ऑफ एक्शन। कीप इन माइंड दैट मार्जिन मींस एज। तो मार्जिनल चेंजेस आर एडजस्टमेंट्स अराउंड द एजेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप 10 चीजें कर रहे थे, 10 वाज योर एज, योर बाउंड्री। 10 से 11वीं चीज करने पे क्या फायदा कीमत होना है, इज थिंकिंग मार्जिनली। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल 1 वाज लोग ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, ट्रेड ऑफ की कीमत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड लोग जो है हमेशा मार्जिन पे सोचते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 इज के लोग जो है ना, वो इंसेंटिव से ड्रिवन होते हैं कि अगर कीमत थोड़ी सी कम कर देंगे ना, तो लोग हो सकता है, या किसी को डिस्काउंट थोड़ा सा दे देंगे तो लोग कहेंगे यार खरीद लेते हैं। तो प्रिंसिपल 4 अबाउट हाउ पीपल मेक डिसीजंस इज कि अगर हुकूमत कोई इंसेंटिव दे देना लोगों को, तो उस पे लोग रिएक्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल 4 is that people respond to incentives, and sometimes when given an incentive, people will act towards it. So when the price of apple rises, for instance, people will decide to eat something else and fewer apples because this incentivize कर दिया आपने एप्पल को, उसकी कीमत बढ़ा के। तो रूल नंबर 4, people react to incentives। हाँ जी, रूल नंबर 5 क्या है जी?
रूल नंबर 5 ये है कि जब आप तिजारत करते हैं ना, तो तिजारत से एवरीबडी बिकम्स बेटर ऑफ, and how they become better off is something that we will discuss in class next time when we meet inshallah next week. अच्छा, अब सॉरी ये डिसीजन के बाद ना, how given decisions we are starting off with the next thing कि ये लोग interact किस तरह करते हैं. When you talk about interactions, that's where the market में जो behavior हो रहा होता है, जब buyer seller when they meet, what happens? Trade happens, and trade of goods, buyer sellers trade कर रहे होते हैं, and trade makes countries better off because वो specialize कर रही होती हैं, but we'll discuss this in more detail when we get there. मार्केट्स के बारे में हमने बात कर ली है कि मार्केट जो है वो डिसाइड कर सकती है efficiently what the price should be and how much should be produced. And a market economy is an economy that allocates resources through decentralization. Decentralization is when the government does not intervene. जब हुकूमत इंटरवीन ना करे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, तो इसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी. प्रिंसिपल नंबर 7, कभी कभार हुकूमत जो है ना इंटरवीन करके, जिस तरह हमने कहा था ना, सीलिंग्स लगाती हैं, फ्लोर्स लगाती हैं, या टैक्स लगाती हैं, या सब्सिडी देती हैं. Sometimes the government can intervene and improve the market के outcome. Although allocative inefficiency create हो जाती है, but sometimes the government can intervene, and by intervening it can promote efficiency and promote equity as well. अब सवाल ये है कि यार efficiency किस तरह की बढ़ सकती है? Because हमने कहा था टैक्स लगाने से तो यार प्रोडक्शन कम हो जाती है, जितनी हो सकती है उससे कम हो जाती है. हमने ना बेसिकली सब्सिडी की बात नहीं की. सब्सिडी जब लगती है ना, तो बेसिकली सप्लाई बढ़ जाती है, रिवर्स ऑफ टैक्स हो जाता है. So that is something that we have not discussed. Principle number 7, जब मार्केट efficiently परफॉर्म नहीं करती ना, तो it results in what is called allocative inefficiency. थोड़ी सी ये डेफिनेशन जरा जो है ना, ये जरा पढ़ लें, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक्सटर्नैलिटी क्या होती है और मार्केट पावर क्या होती है. समटाइम्स जो है ना, मार्केट जो है ना, उसको अगर आप खुला छोड़ दें तो मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, एंड जब मसाइल क्रिएट होना शुरू होते हैं तो इट्स कॉल्ड मार्केट फेलियर. और आप लोगों ने सुना होगा कि समटाइम्स सम फर्म्स इन द मार्केट हैव लॉट्स ऑफ पावर, और जब उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है ना, तो फिर वो इकोनॉमी को मैनिपुलेट करना, मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस. जिस तरह आप जी सर ये प्रिंसिपल 7 क्या है? प्रिंसिपल 7 ये है कि समटाइम्स जो है ना, मार्केट्स कैन फेल एज वेल. ओ So when we say markets can fail, what we're saying is कि कई दफा होता है ये कि कुछ जो सेलर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, and when they become too इसका powerful, आपने जो असाइनमेंट की है ना, उसमें आपने देखा होगा there is something called a monopoly, and there is something जी जी called an oligopoly, there is something called monopolistic competition, then there is an extreme case called perfect competition as well. Sometimes in the market what happens is कि कुछ एक्टर्स जो होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं मार्केट की प्राइस को. खासतौर पे मोनोपोलीज तो बड़ी वियर्ड सी मार्केट स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे प्राइस सेटिंग जो है ना, टोटली डिपेंडेंट होती है ऑन द सेलर. सेलर कहता है मेरे पास ऐसी चीज है जो किसी और के पास है नहीं, इस वजह से कीमत मैं डिसाइड करूँ. एप्पल कहता है 5 लाख रुपए का है भाई फोन, लेना है तो लो, नहीं लेना तुम्हारी अपनी मर्जी. वैसे एप्पल नहीं कहता, बिकॉज हमारी हुकूमत ने टैक्स ज्यादा लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा. उसका रेट $1000 ही है हमेशा से ही. But sometimes due to some factors in the market becoming too powerful,
the market cannot function properly in the best possible way. आपको आता है ना डेड वेट लॉस क्रिएट होता है. जब डेड वेट लॉस क्रिएट होता है तो बेसिकली व्हाट वी आर इम्प्लाइंग इज कि यार बिकॉज ऑफ सम रीजन some factor the market is failing to produce as much as it could have. एक तो ये मार्केट पावर की बात है. इसके अलावा देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड मार्केट एक्सटर्नैलिटी. ये जब आप पढ़ेंगे ना अभी बुक को in your task, I am going to be reviewing what you write about market externalities. Sometimes जब कंपनीज काम कर रही होती है ना तो वो अपने काम तो सही कर रही होती है लेकिन उनका जो बाय प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकल रहा होता है जिससे बाकी को ना हार्म हो रहा होता है. But you need to read up on what externalities are, and we'll discuss this as well in the next class. And we'll also I'll also want to see what you write about this in the discussion on these on these 10 principles. Acha, now that we've talked about how people make decisions because they're facing trade-offs. Trade-offs have a cost called opportunity cost. People think on the margins. They respond to incentives. When interacting in the market, trade makes people better off because वो specialize कर लेते हैं लोग. In the market, market is a good place where economic activity can be organized, and governments can sometimes intervene to improve the outcome of the market. Sometimes, however, market failures हो जाते हैं because of some externalities or market power. Now, finally, this is the last group of two concepts जो macro economy के बारे में, micro economics के बारे में तो ज़्यादा है नहीं. तो इसको briefly बस मैं I'll just tell you what these mean. Principle 8 basically ये कहता है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो है ना, जब मुल्क के लोग ज़्यादा उनकी पैदावार बढ़ती है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है. क्योंकि जब ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा कमाते हैं. जब ज़्यादा कमाते हैं तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है खर्च करने के लिए. और in order to increase how much a country can produce, तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है. But that's something for next semester जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. Principle number 9 is where which says कि जब भी पैसा छापा जाएगा इकोनॉमी के अंदर तो महंगाई हो जाएगी. This is also something that is going to be discussed with you in the next semester. And the last one is the Phillips curve. This is also something that will be discussed with you. This you will discuss in the next semester. जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे कि जब महंगाई और बेरोजगारी के आपस में रिलेशनशिप इन्वर्स है और इस इन्वर्स रिलेशनशिप को फिलिप्स कर्व कहते हैं. एंड जो इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है. विद दैट we have come to the end of today's class. I have quickly gone through these slides with you. These slides are available on the LMS for you to actually look through and see what they are like. Ab you can take a break for 15 minutes. And once you are done with your break, what I want you to do is, I will by that time have your assignment uploaded on the LMS. You need to open the book up to chapter number 1. Chapter number 1 के अंदर 10 principles हैं जो अभी हमने रिव्यू की. हर प्रिंसिपल के बारे में आपने हैंड रिटन 3 लाइनें लिखनी हैं. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है. तो फॉर ऑल जी सर आ रही है. सर वर्ड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं हाथ से लिखना है. तो अच्छा मतलब फिजिकली पीस ऑफ पेपर पे? हाँ पीस ऑफ पेपर पे लिखना है और फिर उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके एलएमएस पे अपलोड करनी है. अच्छा. And you need to get this done by 12 o'clock today. But based on your submission is when we are going to be marking your attendance. Is that okay? ठीक हो गया सर. सही है. चलो, good luck. Have a good time. Yes, sir. Bye bye.